We have also composed the answers along with the questions. Questions के साथ जो है answers भी composed हैं, so you can look into them, or if you want you can also write them down, whatever. पहला जो question है, what sort of books were presented by the British public to the soldiers? जो बरतानवी अवाम थी, लोग थे, उन्होंने सिपाहियों को किस तरह की किताबें तोहफे में दी थी? That's the question. And the answer would be most of the books sent to the troops were ordinary and suitable. ज्यादातर किताबें जो सिपाहियों को पेश की गई थीं, भेजी गई थीं, वो आम सी और मामूली नौयत की थीं. But some people sent them odd things. लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें कुछ अजीबो गरीब चीजें भी भेजी. Some sent them magazine 20 years old. कुछ लोगों ने उन्हें 20 साल पुराने शुमारे भेजे. Some sent them guides to the Lake District. कुछ ने उन्हें लेक डिस्ट्रिक्ट के रहनुमाई किताबचे भेजे. And some sent them back numbers of Whitaker's Almanac. और कुछ लोगों ने उन्हें Whitaker's Almanac के पुराने शुमारे भेजे. So that would sum up the answer to your question number 1. यहाँ आपका question number 1 का आंसर मुकम्मल होता है. I repeat, most of the books sent to the troops were ordinary and suitable. ज्यादातर किताबें जो ट्रूप्स को, सोल्जर्स को भेजी गईं, वो मामूली सी और आम सी थी. But some people sent them odd things. कुछ लोगों ने उन्हें अजीबो गरीब अशिया भेजी. Some sent them magazines 20 years old. कुछ ने उन्हें 20 साल पुराने शुमारे भेजे. Some sent them guides to the Lake District. कुछ ने उन्हें लेक डिस्ट्रिक्ट के रहनुमाई किताबचे भेजे. And some sent them back numbers of Whitaker's Almanac. और कुछ लोगों ने उन्हें Whitaker's Almanac के पुराने शुमारे भेजे. And of course all these books were simply of no use to them. ये सारी किताबें जो थी ये उनके लिए किसी काम की नहीं थी. They were useless for them. इसीलिए J.C. Squires जो है, वो J.C. Squire जो है, he calls them as indigestible stuff. वो इसे indigestible stuff कहता है, things not to be digested, ना समझ में आने वाली किताबें. So that's the answer to your question number 1. ये आपके question number 1 का आंसर है. Let's move on to your question number 2. Question number 2 की जानिब चलते हैं. Give me the next slide, Shan. जी, your second question is, was it interest of soldiers that prompted their action, or was it the wish to get rid of useless books? Now the question is, सवाल ये है कि लोगों ने ये जो इस तरह की किताबें उन्हें भेजी थी, तो क्या ये कोई सिपाहियों का, ट्रूप्स का फायदा था जिसके लिए ये किताबें उन्हें भेजी गई, या लोगों की अपनी ख्वाहिश थी कि वो इन किताबों से, इन बेकार किताबों से छुटकारा हासिल करें? We know that people actually wanted to get rid of these books. हमें पता है कि लोग खुद इन किताबों से छुटकारा हासिल करना चाहते थे. So how would we answer the question? People had no interest in troops whatsoever. लोगों का सिपाहियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था. They sent them books as gifts not because they loved them. उन्होंने किताबें उन्हें तोहफे के तौर पर इसलिए नहीं भेजी कि वो उनसे प्यार करते थे, but because they wanted to get rid of their worthless books. बल्कि उन्होंने किताबें इसलिए भेजी क्योंकि वो अपनी बेकार किताबों से छुटकारा हासिल करना चाहते. That is why the books sent to the troops were odd and absurd. यही वजह है कि जो किताबें सिपाहियों को भेजी गईं, वो अजीब सी और फजूल सी किताबें थी. So I repeat, एक बार फिर सुन लीजिए. People had no interest in troops. लोगों की फौज के साथ, सिपाहियों के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी. They sent them books as gifts not because they loved them. उन्होंने किताबें उन्हें इसलिए नहीं भेजी कि वो उनसे प्यार करते थे, but because they wanted to get rid of their worthless books. बल्कि किताबें इसलिए भेजी गईं क्योंकि वो अपनी बेकार किताबों से छुटकारा हासिल करना चाहते थे. That is why the books sent to the troops were odd and absurd. यही वजह है कि जो किताबें सिपाहियों को भेजी गईं वो अजीब सी और फजूल सी किताबें थी. So that sums up our answer to question number 2. Let's move on to the next question. Next slide दे दें शाम. जी, that's another important question. Why should bad books be destroyed? Bad books को
क्यों डिस्ट्रॉय किया जाना चाहिए, क्यों एलिमिनेट किया जाना चाहिए? वी नो द आंसर टू द क्वेश्चन। हमें पता है कि बैड बुक्स शुड बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज देयर डिस्ट्रक्शन नॉट ओनली मेक्स रूम फॉर न्यू बुक्स but it also saves one's ears from the trouble of sorting the rubbish out and storing it. बुरी किताबों को इसलिए तल्फ किया जाना चाहिए कि इनकी तल्फी से ना सिर्फ नई किताबों के लिए जगह बन जाती है, बल्कि इससे आपके वरोसा जो हैं वो उस कूड़ा क्रिकेट को जखीरा करने और उसे छानने की अजियत से भी बच जाते हैं। तो अब इसका जवाब हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज नॉट वाइज टू कीप द बैड बुक्स। बुरी किताबों को संभाल कर रखना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। दे शुड बी डिस्ट्रॉयड, दे शुड बी एलिमिनेटेड, इन्हें तल्फ किया जाना चाहिए। देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग यूजलेस बुक्स। ये जो यूजलेस बुक्स हैं इन्हें तल्फ करने के कुछ फवाइद हैं। फर्स्ट, इट मेक्स रूम फॉर द गुड एंड न्यू बुक्स। पहली बात कि ये नई और अच्छी किताबों के लिए जगह बनाता है। इस फर्स्ट, इट मेक्स रूम फॉर द गुड एंड न्यू बुक्स। पहला फायदा ये है कि ये अच्छी और नई किताबों के लिए जगह बनाता है। फुल स्टॉप डालेंगे इसके बाद और फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे सेकेंडली इट सेव्स वंस एयर्स। वंस ONE अपोस्ट्रोफी डाल के S लिखेंगे और आगे एयर्स HEIRS। इट सेव्स वंस एयर्स from the trouble of sorting out the rubbish and storing it. दूसरा फायदा ये है कि ये आपके वरोसा को इस कूड़ा क्रिकेट को छानने और इसे जखीरा करने के अजाब से भी बचा लेता है। सो आई रिपीट, इट इज नॉट वाइज टू कीप द बैड बुक्स। बुरी किताबों को संभाल कर रखना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। दे शुड बी डिस्ट्रॉयड, इन्हें तल्फ किया जाना चाहिए। देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग द बैड बुक्स। यूजलेस बुक्स को डिस्ट्रॉय करने के, इनहलेट करने के, एलिमिनेट करने के कुछ फवाइद हैं। क्या है? फर्स्ट, इट मेक्स रूम फॉर द गुड एंड न्यू बुक्स। पहला फायदा ये है कि इससे नई और अच्छी किताबों के लिए जगह बन जाती है। फुल स्टॉप डालेंगे और लिखेंगे सेकेंडली इट सेव्स वंस ears फ्रॉम द ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग द रबिश आउट एंड स्टोरिंग इट। दूसरा फायदा ये है कि ये आपके वरोसा को इस कूड़ा क्रिकेट को छानने और जखीरा करने के अजाब से भी बचा लेता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जी। Why is it difficult to destroy books? किताबों को तल्फ करना मुश्किल क्यों हुआ करता? Destroy books. आमतौर पर किताबों को तल्फ करना आसान नहीं होता। It is hard to burn them. इन्हें जलाना मुश्किल हुआ करता है because you have to burn them leaf after leaf. आपने इन्हें वर्क करके जलाना होता है। The only way to burn a book is to burn it leaf by leaf. वो वाहिद तरीका जिससे आप किसी किताब को जला सकते हैं वो इसे वर्क करके जलाने का है। वन में थ्रो देम इनटू द रिवर। आप इन्हें दरिया में भी फेंक सकते हैं, बट इवन दिस में नॉट बी इजी। लेकिन ये काम भी कुछ ज्यादा आसान नहीं है। सो द आंसर वुड बी यूजुअली इट इज नॉट इजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स। आमतौर पर किताबों को तलफ करना आसान नहीं होता। इट इज हार्ड टू बर्न देम। किताबों को जलाना मुश्किल हुआ करता है। द ओनली वे टू बर्न अ बुक इज टू बर्न इट लीफ बाय लीफ। किसी किताब को जलाने का वाहिद तरीका उसे वर्क करके जलाने का है, एक एक वर्क। वन में थ्रो देम इनटू द रिवर। आप इन्हें दरिया में फेंक सकते हैं, बट इवन दिस में नॉट बी इजी। लेकिन हत्ता कि ये काम भी मुश्किल हो सकता है कि ये काम भी इस कदर आसान ना हो। सो दैट्स योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। लेट्स लुक इनटू आवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। Why could not the author burn the unwanted books? अब सवाल यह है कि आथर जो है वो अनवांटेड बुक्स को, जो किताबें वो जिनसे छुटकारा हासिल करना चाहता था, उन्हें जला क्यों नहीं पाया? एंड द आंसर वुड बी द आथर कुड नॉट बर्न द अनवांटेड बुक्स बिकॉज ही हैड अ स्मॉल किचन।
एक तो पहली बात यह है कि उसके पास कोई प्रॉपर किचन रेंज नहीं थी. ही हैड अ स्मॉल किचन. उसका बावर्ची खाना जो है वो छोटा सा था. दैट्स व्हाई ही कुड नॉट बर्न देम. दूसरी बात क्या थी? ही कुड नॉट बर्न देम ऑन द गैस कुकर और इन हिज स्मॉल स्टडी फायर. दूसरी बात ये कि वो अपनी किताबों को गैस वाले चूल्हे पर या अपनी मुतायला गाह की छोटी अंगीठी में नहीं जला सकता था. For him, the only way to burn a book was to burn it leaf by leaf, and it was not quite easy. उसके लिए किताब जलाने का वाहिद रास्ता ये था कि उन्हें एक एक वर्क करके जलाया जाए, और ये काम कोई ज्यादा आसान नहीं था क्योंकि there were scores of them. उन किताबों की तादाद 20 में थी. एक इसका जवाब सुनने. The author could not burn the unwanted books because he had a small kitchen. वो इसलिए नहीं जला पाया क्योंकि उसका बावर्ची खाना छोटा था. He could not burn them on the gas cooker or in his small study fire. वो इन्हें गैस के चूल्हे या अपने मुतायला गाह की छोटी अंगीठी पर नहीं जला सकता था. For him, the only way to burn a book was to burn it leaf by leaf. उसके लिए वाहिद मुमकिना तरीका किताबों को जलाने का ये था कि उन्हें वर्क वर्क करके जलाए. And it was not quite easy. और ये काम आसान नहीं था. That's why he could not burn the unwanted books. इसलिए वो अपनी unwanted books को नहीं जला पाया. That was your question number 5. Let's look into the next question. How did he decide to get rid of them? फिर उसने उन किताबों से किस तरह छुटकारा हासिल करने का फैसला किया. The writer wanted neither to send the useless books to the troops nor to burn them. अब राइटर जो है वो उन किताबों को ना तो ट्रूप्स को भेजना चाहता था, ना ही उन्हें जलाना चाहता था. Therefore he decided to throw them into the river. इसलिए उसने फैसला किया कि इन किताबों को दरिया में फेंक दिया जाए. He stuffed his books into a sack. उसने अपनी किताबें एक बोरी में ठूंसी. Put it on his shoulder. उसे अपने कांधे पर रखा. And went out to throw them into the river. और उन्हें दरिया में फेंकने के लिए बाहर निकल पड़ा. Because आपको पता है that he decided to do to them what people do to the kittens. उसने उनके साथ वही करने का फैसला किया जो लोग आमतौर पर बिल्लियों को करते हैं. Stuff them up in a sack. एक बोरी में उन्हें ठोंसो and surrender them to the river और दरिया के हवाले कर. एक बार फिर इसका आंसर देख लें. The writer wanted neither to send them to the troops nor to burn them. Therefore he decided to throw them into the river. इसलिए उसने उन किताबों को दरिया में फेंकने का फैसला किया. He stuffed his books into a sack. उसने अपनी किताबें एक बोरी में ठूंसी. Put it on his shoulder. उसे अपने कांधों पर रखा. And went out to throw them into the river. और उन्हें दरिया में फेंकने के लिए निकल पड़ा. जी, next question. Describe the author's midnight venture to throw the books into the river and the suspicion which his action were likely to arouse. दरिया में किताबों के फेंकने के लिए मुसन्निफ के निस्फ शब की मुहिम जुई को बयान कीजिए और साथ साथ वो शकूक भी बताएं जो उसके काम से मुमकिना तौर पर पैदा हो सकते थे. अब बात क्या है? इट वॉज मिडनाइट. निस्फ शब का वक्त था. द राइटर पास्ड बाय अ पोलिसमैन. राइटर एक पुलिसमैन के करीब से गुजरा. He thought that the policeman might take him for a thief. उसने सोचा कि हो सकता है पुलिस वाला उसे कोई चोर समझ ले. Then he reached the river. फिर वो दरिया पर पहुंचा. There he thought that he might be arrested as a baby killer. वहां उसके जहन में ये ख्याल आया कि हो सकता है उसे एक बेबी किलर के तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए. But finally he threw the sack of books into the river. लेकिन आखिरकार वो किताबों को दरिया में फेंकने के काबिल हो ही गया. It was midnight. निस्फ शब का वक्त था. The writer passed by a policeman. राइटर एक पुलिसमैन के करीब से गुजरा. He thought that the policeman might take him for a thief. उसे लगा कि पुलिसमैन उसे कोई चोर समझ सकता है. Then he reached the river. फिर वो एक दरिया पर पहुंचा. There he thought that he might be arrested as a baby killer. वहां उसके जहन में ख्याल आया कि उसे किसी बेबी किलर के तौर पर गिरफ्तार किया जा सकता है. But finally he threw the sack of books into the river. लेकिन आखिरकार वो अपनी किताबें दरिया में फेंक देता है.
So that's your answer to question number 7. Next one. How did he muster up courage at last to fling them into the river? आखिरकार उसने किताबें दरिया में फेंकने के लिए अपना हौसला किस तरह से इकट्ठा किया? So when the writer was throwing the sack into the river, जब राइटर उस बोरी को दरिया में फेंक रहा था, he thought that he might be arrested as a baby killer. उसे लगा कि वो किसी बेबी किलर के तौर पर अरेस्ट किया जा सकता है. But then he thought if he did not throw the sack, he would not be able to walk with his head erect. लेकिन फिर उसके जहन में ख्याल आया कि अगर अब उसने ये बोरी ना फेंकी तो वो कभी सर उठाकर नहीं चल पाएगा. Therefore he threw the sack into the river. इसलिए उसने वो बोरी दरिया में फेंकी. एक बार फिर इसका आंसर देख लें. When the writer was throwing the sack into the river, जब वो ऑथर, जब मुसन्निफ दरिया में किताबों वाली बोरी फेंकने लगा, he thought that he might be arrested as a baby killer. उसके जहन में आया कि उसे एक बेबी किलर के तौर पर अरेस्ट किया जा सकता है. But he thought if he did not throw the sack, लेकिन उसके जहन में आया कि अगर उसने इस बोरी को ना फेंका, he would not be able to walk with his head erect. तो वो कभी अपना सर उठाकर नहीं चल पाएगा. Therefore he threw the sack into the river. इसलिए उसने वो बोरी दरिया में फेंक जी. Did he come to have a feeling for those books once he had got rid of them? Now the question is कि जब उसने उन किताबों से छुटकारा हासिल कर लिया तो क्या उसे उन किताबों का ख्याल आया? क्या उसे उन किताबों को फेंकने पर अफसोस हुआ? The writer felt a bit sad for those books. राइटर ने उन किताबों के हवाले से कदरे अफसोस महसूस किया. He thought that the innocent books would be lying at the cold dark bottom of the river. उसने सोचा कि वो मासूम किताबें जो हैं वो दरिया के सर्द और तारीक बॉटम में पड़ी होंगी. They would lie there lonely and the forgotten. They would lie there lonely and forgotten forever. वो हमेशा हमेशा के लिए वहां अकेले और भुलाई हुई पड़ी रहेंगी. फुल स्टॉप देना है फॉरएवर के बाद और इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होना है. यहाँ पे थोड़ी सी मिस टाइपिंग है. He thought with the passage of time they would be covered with mud. उसने सोचा कि वक्त गुजारने के साथ साथ वो कीचड़ से ढांपी जा चुकी होंगी. So this is how you would attempt your question number 9. The writer felt a bit sad for the books. राइटर ने किताबों के लिए कदरे अफसोस महसूस किया. He thought that the innocent books would be lying at the cold dark bottom of the river. They would lie there lonely and forgotten forever. He thought, next sentence है यहाँ से, new sentence शुरू करना है. He thought, comma, with the passage of time, they would be covered with mud. So I guess that was your last question of the exercise.